my dear children, welcome back to my online class. This is the third part of the chapter tenses. In the previous videos, we have already discussed present tense, and today we are going to discuss past tense. So let's start today's video. Past tense. The past tense in English is used to talk about past, to talk about hypothesis for politeness. So we use, as simple as that, we can say that we use past tense to talk about the things which are already in past, for the actions which happened in the past. So there are again four kinds of past tense. Okay, similarly, like we have already discussed in present tense, that there are four kind of present tense: simple present, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. Similarly, past tense is also divided in four parts. So first is past simple, which is also known as simple past. Second is past continuous, which is also known as past progressive. Past perfect, which has only one name, past perfect continuous, which we can also say past perfect progressive. So you can see here in the simple past we have only written subject plus verb second form. Next is past continuous, subject plus was plus verb ing form. Next up is past perfect, subject plus had plus verb third form. And the last is past perfect progressive, subject plus had been plus verb ing form. So let's discuss each one of it one by one. Firstly, we have simple past tense. We use the past tense to talk about, now here are few situations where we use simple past tense. But before that, let's discuss how can we write simple past tense. When we make any sentence for simple past tense, we just write subject plus verb second form plus object. Like if I say subject she, verb second form, suppose run. Run means run second form is ran, an object very fast. So she ran very fast. Okay, she ran very fast. So we use the simple past tense to talk about something that happened once in the past. So हम सिंपल पास्ट ऐसी जगहों पे यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शंस पे यूज़ करते हैं जो एक बार कभी हुआ था. जैसे मैं एक बार कभी कहीं गई थी, मैं एक बार किसी से मिली थी, ठीक है, या मैंने एक बार ये काम किया था. एग्जाम्पल, आई मेट माई वाइफ इन 1983. So this person met his wife in 1983 for the first time. Next, we went to Spain for our holidays. Means वो बहुत बार नहीं जा चुका है. He went there only single time. वो स्पेन गया था हॉलीडेज पे एक बार, ठीक है. They got home very late last night. So this is the first condition where we use simple past tense. कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई काम एक बार हुआ था. Next, something that happened several times in the past. So in all these situations you will see we will only talk about the things which happened in the past. जो चीज़ें past में हो चुकी है. ओके, वो चीज़ें जो पास्ट में सेवरल टाइम्स कई बार हो चुकी है. जैसे व्हेन आई वाज अ बॉय आई वॉकड अ माइल टू स्कूल एवरी डे. जब मैं छोटा लड़का था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो मैं रोज़ स्कूल इतनी दूर जाता था. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यूसली, मतलब वो बार बार हो रहा है, डेली होता था. ठीक है, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बात करते हैं कि हैबिचुअल एक्शन. सिमिलरली द हैबिचुअल एक्शन विच हैपेंड इन द पास्ट. ओके, सिंपल प्रेजेंट होता है जो हैबिचुअल एक्शन, द हॉबीज़, द हैबिट विच आर इन द प्रेजेंट टेंस. और सिंपल पास्ट में क्या होता है, वो हॉबीज़, वो हैबिट जो पास्ट में होती थी. ठीक है, वी स्वैम अ लॉट वेल वी वर ऑन हॉलीडे. अगेन ये एक रिपीटेड एक्शन है, ये एक हॉबी है, ये एक हैबिट है. दे ऑलवेज एन्जॉयड विजिटिंग देयर फ्रेंड्स. वो बहुत इन्जॉय करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ. अगेन
होता था, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में हम कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, वैसे ही हम पास्ट में कहते हैं कि मैं ये काम करता था। नेक्स्ट, समथिंग दैट वॉज ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट। आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स। जब पास्ट में कोई काम कुछ टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए हुआ होता है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। जैसे आई लिव्ड अब्रॉड फॉर 10 ईयर्स, सो ही लिव्ड अब्रॉड ओनली फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वो काम हुआ, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट। ही enjoyed being a student. He enjoyed being a student. Now you can see here that enjoyed is the second form of enjoy, and lived is the second form of live. I is the subject. Abroad for 10 years is the object. So here we are making subject plus verb second form plus object. Okay. She played a lot of tennis when she was younger. Subject she, played is your verb second form, and rest portion is your object. Last is, we often use expressions with ago with the past simple, with the simple past. Okay, so जहाँ पर भी हमारा ये long time ago या इस टाइप से चीज़ें लगी होगी, वहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, सिंपल पास्ट। लाइक आई मेट माई वाइफ लॉन्ग टाइम अगो, या अगर कोई सेंटेंस आपका शुरू होता है लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ गर्ल, तो वहाँ पे भी आप सिंपली समझ जाओ कि यहाँ पर देयर लॉन्ग टाइम अगो लिखा है, तो द सेंटेंस इज योर सिंपल पास्ट टेंस। नाउ कम टू दिस past simple questions and negatives. Okay, now how to make questions in your past tense, how to make questions for simple past and negative simple past. We use did to make questions with the simple past. जब भी हमें सिंपल पास्ट के लिए क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिड। सिंपल प्रेजेंट में जब हम क्वेश्चन बनाते थे तो क्या यूज़ करते थे, हम यूज़ करते थे डू और डज। डू हम यूज़ करते थे विथ you, I and with plurals, okay, और does हम कहाँ यूज़ करते थे, with singular। यहाँ पर चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको सिंपल पास्ट में क्वेश्चन बनाना है तो यू विल ओनली यूज़ डिड, ओके। और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे क्वेश्चन में, हम फर्स्ट फॉर्म, रूट वर्ब, ठीक। जैसे डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वॉज यंगर, डिड शी प्ले टेनिस व्हेन शी वॉज यंगर। और इसका आंसर क्या बनेगा, येस शी प्लेड टेनिस, ठीक है। जब हम डिड रिमूव करेंगे तो जो हमारा प्ले है उसका जो आंसर बनेगा वो वापस से क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट के फॉर्म में आ जाएगा, और आ जाएगा सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, डिड यू लिव अब्रॉड, येस आई लिव्ड इन अब्रॉड, ओके, या आई वेंट अब्रॉड। व्हेन डिड यू मीट योर वाइफ, क्वेश्चन में डिड है, आंसर में क्या हो जाएगा, मीट का सेकेंड फॉर्म, आई met my wife several years ago. Where did you go for your holidays? I, go का second form, went Maldives for my holidays. But questions with who often don't use did. ओके, जब भी हमारे क्वेश्चन में हु लगा होगा, जब भी हमारा क्वेश्चन हु से शुरू होगा, तब वहाँ पे हमें डिड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हु डिड डिस्कवर पेंसिलिन, ओके, वी विल ओनली राइट हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। या सपोज आपको कहना है वहाँ कौन गया था, तो आप ये नहीं कहोगे हु डिड गो देयर, ठीक है, यू विल ओनली से हु वेंट देयर। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, बट if you have any sort of questions, feel free to ask me in the comment section. Let's just move forward to the next one, which is past progressive tense. How to write past progressive tense? Let's see this. The past continuous is made from the past tense of verb be and the ing form of verb, जिसका मतलब होता है easy language में बोले तो subject plus be का form क्या होता है past tense, was, were, और बी का फॉर्म प्रेजेंट में क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ सी वेयर टू यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। वी यूज द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टू टॉक अबाउट द पास्ट। ये तो हमें पता ही है कि अगर पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है तो हमें पास्ट के ही बारे में बात करनी होगी, चाहे वो सिंपल पास्ट हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। कहाँ यूज़ करते हैं वो देखो,
for something which happened before and after another action. The children were doing their homework when I got home. For something which happened before and after another action. ठीक है, पास्ट में कोई काम हुआ था, दो एक्शंस हुए थे. ठीक है, मान लो आपके पास्ट में कोई दो एक्शन हुए. जैसे आपने कहा जब मैं वहाँ गया तो वो सो रहा था, जब मैं वहाँ गया तो वो सो रहा था. यहाँ दो एक्शन हो रहे हैं. पहला एक्शन जब मैं वहाँ गया, दूसरा एक्शन वो सो रहा था. ठीक है, तो जब भी दो एक्शन होगा तो दो एक्शन में पास्ट में पहले वाले के पहले या पहले वाले के बाद, मतलब दो एक्शन जहाँ पर भी है वहाँ कोई एक एक्शन पास्ट कॉन्टिन्यूस में ज़रूर होगा. ठीक, जैसे द चिल्ड्रन वर डूइंग देयर होमवर्क व्हेन आई गॉट होम. बच्चे होमवर्क कर रहे थे जब मैं घर पहुंचा. या जैसे मैंने अभी कहा कि जब मैं वहाँ गया तो वो सो रहा था. व्हेन आई वेंट देयर, या he was sleeping when I went there. ठीक है, this use of past continuous is very common at the beginning of this story. The other day I was waiting for a bus when last week as I was driving to work. ठीक है, किसी भी स्टोरी को शुरू करने से पहले जब भी आप किसी को कोई बात सुना रहे हो, कोई भी बात नैरेट कर रहे हो, तब भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का जो यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं. जैसे मैंने कहा कि कल मैं वहाँ पर था, मैं वहाँ पे वेट कर रही थी, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया. तो मैं चाहूँ तो मैं अपनी स्टोरी की शुरुआत ही ऐसे कर सकती हूँ कि द लास्ट डे आई वॉज वेटिंग देयर फॉर समवन बट देन दैट हैपन, आफ्टर दैट हैपन. ओके, next is for something that happened before and after a specific time. It was 8 o'clock. I was writing a letter. जब भी आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम हो, जब वो कोई काम शुरू हुआ हो, ठीक है, मतलब आपके पास पास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम हो जब आप वो काम कर रहे थे. ओके, सिमिलरली इट वॉज 8 o'clock when I was writing a letter. 8 बज रहा था जब मैं लेटर लिख रहा था. देखो, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बेटा. आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी कोई चीज़ जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होता है, कंटिन्यूटी की बात होती है. सिमिलरली जब कोई काम पास्ट में किसी एक टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था, कुछ देर वो काम चला, कंटिन्यू रहा, तो उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, जब पास्ट में कोई भी चीज़ जो है वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा हो. टू शो दैट समथिंग कंटिन्यूड फॉर सम टाइम. See, this was I talking about. My head was aching. Everyone was shouting. सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग आवाज़ कर रहे थे, सब लोग शोर कर रहे थे. क्या हो रहा है? कोई शोर करना शुरू किया और शोर करते रहे कुछ समय तक. ठीक है, उसको हम कहते हैं past continuous. For something that happened again and again. ठीक है, जब कोई काम अगेन एंड अगेन बार बार पास्ट में होता रहा हो. जैसे आई वॉज प्रैक्टिसिंग एवरी डे 3 times a day. मैं रोज़ प्रैक्टिस कर रहा था. ठीक है, दे वर मीटिंग सीक्रेटली आफ्टर स्कूल. दे वर ऑलवेज क्वेरलिंग. वो हमेशा लड़ते रहते थे. ठीक है, विद वर्ब्स विच शो चेंज और ग्रोथ. ऐसे वर्ब्स के साथ भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं जिसमें चेंज या किसी टाइप के ग्रोथ की बात हो. जैसे द चिल्ड्रन वर ग्रोइंग अप क्विकली, हर इंग्लिश वॉज इम्प्रूविंग, माई हेयर वॉज गोइंग ग्रे, या हाँ गोइंग ग्रे इज़ फाइन. द टाउन वॉज चेंजिंग क्विकली. सारी ही जगह आप देख सकते हो कि चेंज या किसी टाइप के ग्रोथ की बात की गई है. तो जब भी आप किसी तरह के चेंज या किसी तरह की ग्रोथ की बात करोगे तब आप क्या यूज़ करोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस. सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने सिर्फ 2 तरह के टेंस पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादा हम एक साथ पढ़ेंगे तो हम हो जाएंगे कंफ्यूज, जो हमें होना नहीं है. ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने पढ़ा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? ऐसे कोई भी एक्शन जो पास्ट में हो चुके हैं, जैसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं. ठीक है, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम बात करते हैं तो होता है वो पास्ट टेंस. पास्ट टेंस 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल पास्ट एंड अनदर इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव. सिंपल पास्ट हम बनाते हैं कैसे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म, बी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वॉज और वर, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कुछ चीज़ें देख लेते हैं. सिंपल पास्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंपल पास्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जब पास्ट में
किसी भी हैबिचुअल चीज़ों के बारे में, किसी भी हॉबीज़ के बारे में, किसी भी हैबिट के बारे में बात होती है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस हम कब यूज़ करते हैं? जब हम पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ हो और वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा हो, ऐसी चीज़ों के बारे में जब बात करते हैं तब हम कहते हैं वो पास्ट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैं पढ़ा रही हूँ, राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैंने कहा मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? आई एम टीचिंग राइट नाउ। और अगर कल मुझे आज के बारे में कहना है कि कल मैं पढ़ा रही थी, तो मैं क्या बोलूँगी? येस्टरडे आई वॉज टीचिंग, या आई वॉज टीचिंग येस्टरडे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। प्रेजेंट टेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पास्ट टेंस में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था, एक टाइम पे शुरू हुआ था, फिर एक टाइम कुछ देर कंटिन्यू हुआ, फिर ख़त्म हो गया, वो क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस। Okay students, so today we will only discuss this much. In the next video we will complete past tense, and after that in next video we will complete future tense. So okay, we will meet up again in the next video. Till then, take care, stay safe.